Hello everyone and welcome back to the science class of class 7. Students, today we are going to start a new chapter 4, that is heat. This is Saraswati Devi welcoming you all to the science class with a new chapter heat. Okay, so let's see what are the things we are going to study today in this chapter. So in this chapter we'll learn hot and cold substances. We'll learn why few substances are hot, why few are cold, how we know whether a substance is hot or cold. We'll also learn to differentiate between heat and temperature. We will learn about thermometer, its type, and in detail we'll learn about clinical thermometer and laboratory thermometer. Okay, before beginning this class, students, you know which season is this? This is summer season. Okay, why do we avoid going out in the summer season? It is due to the heat. In the summer season, more amount of heat is present outside, and so we feel hot in summer season. So it is due to the heat, the more amount of heat outside. We try to stay indoor. We avoid this hot weather. To avoid this hot weather. Okay, let us have a look at some pictures. Here is a picture of a cup of tea, ice and ice cream. So, by seeing anything you cannot say whether that substance is hot or cold. Can you say? No, you cannot say whether a substance is hot or cold. By touching that substance we can say that it is hot or cold. Now okay, you will be saying that I know tea is hot, ice is cold. Yes, you can by seeing these pictures or these things you can simply say these are hot or cold because you are using this in our day to day life. But what if I give you a glass of water and I'll ask you just see and tell me whether it is hot or cold? Can you say? You cannot say. But if you touch it, you'll feel it and you can tell me whether it is hot or cold. So we can know a substance is hot or cold by touching it. So touching, so the sense of touch can give us the knowledge, or we can know whether a substance is hot or cold. Okay, so what is making a substance hot or cold? What is present in a substance that makes it hot or cold? It is heat. There must be something, right? That is heat. So if a substance has more amount of heat, that substance will be hot, and if the heat present in a substance is less, then that substance will be cold. Okay, now what if a hot and a cold substance are brought together? What will happen? The flow of this heat will take, heat is a form of energy. Okay, now what if two substances hot and cold are brought together? There will be flow of heat. Let us have a look at the video to know the direction of heat flow. Now students, if you take a hot milk and a bowl of cold water, and if you place a glass of hot milk in that water, what will happen? After some time you will feel that the hot milk will become cool, and if you touch that water which was present in the bowl, you will feel it to be little warm. Means it will be not cold, it will be little warmer than it was previously cold. So now what you can say here, the flow of heat is taking place from the hot glass of milk to the cold water. So the flow of heat always takes place in the direction of flow of heat is from hot objects to the cold objects. सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. हम लोग भी अपने घर में अगर गर्म दूध हमारी मम्मी देती हैं हमको, तो उसको ठंडा करने के लिए व्हाट वी डू, समटाइम्स वी प्लेस इट इन अ बाउल विच कंटेन्स वाटर so that the milk cools fast. Okay, so when a hot object and a cold object comes in contact with each other, what happens? A type of energy flows from hot object to the colder object, and that energy is heat energy. Okay, if a substance gains
this heat energy, what happens? It becomes hot, and the substance which loses this heat energy, that substance become cold. Simple example, हमने hot milk का देखा. Milk was hot, the flow of energy from the milk has taken place, and तो milk क्या हो गया? Milk हो गया ठंडा. Water was कोल्ड, पानी पहले से ही ठंडा था. अब उसमें क्या हुआ है? दूध में से जो हीट एनर्जी फ्लो हुई है उस पानी में, ठंडे पानी में, तो क्या हो गया है? अब वो दूध थोड़ा सा वार्म हो चुका है, उसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा हो चुका है. ओके, सो व्हाट हैपन्स? हीट गेट्स ट्रांसफर्ड ऑलवेज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. तो जब भी एक हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होता है? हमेशा हीट एनर्जी का फ़्लो होता है, और वो हीट एनर्जी का फ़्लो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. अच्छा, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, अगर आप अपने हाथ में बर्फ़ का टुकड़ा रखते हैं तो वो पिघल जाता है, वो इट स्टार्ट्स टू मेल्ट. वाई द आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट? क्योंकि जो हमारी बॉडी की हीट है वो हीट उस कोल्ड आइस में ट्रांसफ़र होती है, जिसके वजह से वो मेल्ट हो जाता है. सो व्हाट वी कैन से, द मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन अ पाम इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी टू द आइस. सो इसके वजह से हमें वो आइस कूल लगती है. ओके, और जब हीट एनर्जी हमारी बॉडी में हीट आती है तो हमें कैसा लगता है? हमें हॉट लगता है. और जब हमारी बॉडी से हीट लूज़ होती है तब हमें कैसा लगता है? तब हमें ठंडा लगता है. ओके, सो हमने बोला अभी कि हम टच करके बता सकते हैं कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, बट क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कौन सी चीज़ ठंडी है कि नहीं? ओके, लेट अस डू वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, हियर we'll take 3 beakers, one with ice water, one with the tap water. Tap water, it is the normal water which is at the room temperature. Okay, and next is the hot water. Okay, जो हम hot water ले रहे हैं, हम इतना hot नहीं लेंगे कि वो हमें burn कर दे, तो हम उतना लेंगे जितना हमारा hand bear कर सकता है. ओके, हमें ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है. So अभी if we'll dip our right hand की finger into the hot water and left hand's finger into the ice water, तो क्या होगा? What will happen? Our right hand finger will feel hot and the left hand finger will feel cold. Okay, now next step is हमारी इन दोनों उंगलियों को हमें साथ में, एक साथ, ओके, किस में डिप करना है? टैप वाटर में डिप करना है. सो व्हाट यू विल फील? आपको क्या फील होगा? तब आपका जो राइट हैंड का फिंगर है जो पहले हॉट था, जो गर्म पानी में डालने के बाद आपको हॉट फील हुआ था, तो उस फिंगर को आपको ये टैप वाटर कैसा लगेगा? कोल्ड लगेगा व्हेन कंपेयर्ड टू दैट वाटर. ओके, बट अगर आपने अपना लेफ़्ट हैंड को सेंस करेंगे, लेफ़्ट हैंड की फिंगर के जो आपने आइस वाटर में डाली थी उसको टैप वाटर में आपने डाला हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? यू विल फील दैट वाटर इज़ हॉट. सो आप ही के दोनों हाथ की फिंगर्स जो आपने अलग अलग टेम्परेचर के पानी में, हॉट वाटर कोल्ड वाटर में डाले थे, उन दोनों को आपने एक साथ जब नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में डाला, रूम टेम्परेचर वाले वाटर में डाला, तो दोनों को वो वाटर जो है अलग अलग फील हो रहा है. अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड यू विल फील इट कोल्ड. As per your left hand you will feel that tap water is warm. So क्या हम कह सकते हैं कि हमारा टच एक हमें रिलायबल मेजर देता है कि कौन सा सब्सटेंस हॉट है, कोल्ड है? सो हम हमारे टच पे हमेशा डिपेंड नहीं हो सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. सो टच हमें हमेशा एग्जैक्टली वो सब्सटेंस कितना हॉट या कोल्ड है वो नहीं बताता है. सो फॉर दिस रीज़न व्हाट वी डू, वी measure the temperature. temperature क्या होता है? temperature is degree of hotness of an object. so किसी भी substance का हम temperature measure करते हैं जिससे हमें पता चलता है कौन सा substance कितना hot है, कितना cold है.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 40 डिग्री है और एक का 20 डिग्री है तो कौन सा हॉट होगा? यहाँ पर 40 डिग्री वाला हॉट होगा व्हेन कंपेयर्ड टू द 20 डिग्री वाले सब्सटेंस से। ओके, नाउ सो हमें टेम्परेचर का डेफिनेशन पता है। व्हाट इज़ टेम्परेचर? इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हम वी कैन टोटली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इट इज़ एक्चुअली द रिलायबल मेजर। एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें जो पता चल जाती है कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट कोल्ड है, वो हमें टेम्परेचर से पता चलता है। नाउ हाउ दिस टेम्परेचर इज़ मेजर्ड यूजिंग द टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस को हम कैसे डोनेट करते हैं? डिग्री का सिंबल एंड सी। दिस डिग्री का सिंबल यू नो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, डिग्री का सिंबल होता है ये, तो डिग्री सी। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? दिस इज़ डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे कि यहाँ पर 20 डिग्री सी लिखा हुआ है, तो हाउ यू विल रीड इट? इट इज़ एक्चुअली 20 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट यूनिट है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम कैसे डोनेट करते हैं अगर हमें उसे राइट करना है? तो इट इज़ डिग्री एफ। सो इसको हम रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे? इट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, जैसे कि 25 डिग्री एफ लिखा हुआ है, तो हाउ यू विल रीड इट? यू विल रीड इट एज 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री एफ को हम रीड करेंगे 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ केल्विन। केल्विन को हम के से डोनेट करते हैं। अगर किसी नंबर के आगे के लगा है देन वी विल रीड दैट सब्सटेंस, लाइक फॉर एग्जांपल 100 के लिखा हुआ है, तो हाउ यू विल रीड इट? इट इज़ एक्चुअली 100 केल्विन। द टेम्परेचर इज़ 100 केल्विन। ओके, so we know what temperature is. Temperature is degree of hotness of an object is known as temperature. The 3 units we use for measuring the temperature the 3 units of temperature are degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. The symbol of degree Celsius is degree C. For Fahrenheit we write it as degree F, and for Kelvin we write as K. So what we can conclude here, the sense of touch is not reliable to measure the temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का कितना हॉट है, वो कितना कोल्ड है, हम टच करके एक कंपैरिजन अच्छे से नहीं दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, वी कैन नॉट टच एवरीथिंग। हम हर चीज़ को टच नहीं कर सकते हैं। फ्यू थिंग्स आर सो हॉट दैट दे कैन कॉज बर्न। उससे हम जल सकते हैं, इट कैन हार्म अस। सो हम टच पे तो डिपेंड हो ही नहीं सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रिलायबल टू मेजर द टेम्परेचर। सो इसके लिए हमें एक डिवाइस की भी ज़रूरत होगी जिससे हम टेम्परेचर मेजर करें किसी सब्सटेंस का। तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू थर्मोमीटर, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम पहले देख लेते हैं हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ हीट एनर्जी लेवल। किसी सब्सटेंस में कितनी हीट एनर्जी है वो मेजर जो है वो टेम्परेचर है, और हीट जो है एक एनर्जी है। सपोज़ एक सब्सटेंस में अगर ज़्यादा हीट है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसी में कम हीट है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। सो व्हाट इज़ हीट? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड टेम्परेचर क्या है? उसको उस हीट एनर्जी का जो मेजर है कि वो कितनी है किसी सब्सटेंस में, उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, सो हीट एनर्जी रेजेस द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अगर किसी सब्सटेंस में हीट एनर्जी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, अभी टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि हीट कौन से डायरेक्शन में फ़्लो होगी। स्टूडेंट्स, एज आई सेड, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अभी जिसमें ज़्यादा हीट होगी वो ज़्यादा हॉट होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जिसमें कम हीट होगी वो कोल्ड होगा, कम हॉट होगा, उसका टेम्परेचर भी कम होगा। तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी ये कैसे पता चलेगा? अगर हमें दो सब्सटेंस का टेम्परेचर पता है, जैसे एक 40 है एक 20 डिग्री है, तो हीट का फ्लो कहाँ से होगा? 40 डिग्री से 20 डिग्री पे होगा। सो हीट का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है वो कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। और टेम्परेचर किस वजह से राइज़ होता है? वो होता है हीट की वजह से राइज़। सो हीट को हम कैसे मेजर करते हैं? हीट इज़ मेजर्ड इन जाउल्स। ओके, और टेम्परेचर के यूनिट्स हमने अभी अभी पढ़े हैं। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किस में?
सेल्सियस में, केल्विन में एंड फ़ारेनहाइट में। ओके, ये तो हो गई हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर हीट एनर्जी लेवल का मेजर है। हीट राइज होगा तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर जो है डिसाइड करता है कि हीट कौन से डायरेक्शन में फ़्लो होगा। Heat flows from body of higher temperature to the body of lower temperature. Okay, now we know what heat and temperature is. There is no confusion about heat and temperature. These both are the different things. Okay, so students, this is a strict advice to you. Stay away from hot objects. They can cause burn. Never try to touch things without knowing it can cause burn. Okay, now let's see what thermometer is. Thermometer is the device which is used to measure the temperature of a body. किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। सो थर्मामीटर का यूज़ बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कर सकते हैं, हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए कर सकते हैं, या फिर केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरी में भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उनका हम यूज़ थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ें मेजर करने के लिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए। यस स्टूडेंट्स, हमें वेदर रिपोर्ट में हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बताया जाता है। वो टेम्परेचर कैसे बताते हैं उसका भी एक थर्मामीटर होता है। वो थर्मामीटर यूज़ करके वो एक दिन का मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बताते हैं। नाउ थर्मामीटर कैसा होता है? थर्मामीटर एक ग्लास ट्यूब का बना होता है, उसमें एक सिल्वर लाइन दिखती है आपको, ठीक है। दैट सिल्वर लाइन इज़ एक्चुअली बिकॉज इट इज़ फिल्ड विथ मर्क्यूरी। थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी फिल्ड रहता है और ये मर्क्यूरी एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है। और मर्क्यूरी हमेशा बल्ब में फिल रहता है। बल्ब जो है एकदम टिप में होता है, एक एंड में होता है थर्मामीटर के। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वी विल सी हाउ एक्चुअली द थर्मामीटर लुक्स। नाउ let's see what are the different types of thermometer. There are 4 types of thermometer: clinical thermometer, digital thermometer, laboratory thermometer and minimum and maximum thermometer. Okay, so the most commonly used one is the clinical thermometer. The clinical thermometer को हम डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग हॉस्पिटल गए होंगे, आपका फीवर चेक करने के लिए जिस थर्मामीटर को यूज़ करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। टुडे we'll mainly focus on clinical thermometer and laboratory thermometer, and we'll get the little details about digital and maximum minimum thermometer. Okay, these are the 4 types of thermometer. So let's know what clinical thermometer is. क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। जब हमें फ़ीवर होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर जिस थर्मामीटर को यूज़ करता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और उसे हम डॉक्टर्स थर्मामीटर भी बोलते हैं। Nowadays we keep this thermometer at our home also to measure body temperature। जब हमें ऐसा थोड़ा सा फील होता है कि we are down with fever तो हम खुद भी अपना टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। Now इस थर्मामीटर में mercury level in the thermometer rises up in the thread like portion of the thermometer। इस थर्मामीटर में बल्ब में mercury फिल होता है। एंड आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब ये mercury जो है ये थर्मामीटर में राइज़ होता है तब आपको पता चलता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है। ओके, नॉर्मली जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर होती है उसकी रेंज बहुत कम होती है। वो जनरली 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही उसकी रीडिंग्स रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं होता और 45 से ऊपर नहीं हो सकता।
सो इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम किसी और सब्सटेंस को मेजर करने के लिए नहीं कर सकते हैं. इट इज़ ओनली यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड इसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है. नाउ व्हाट इज़ आवर एवरेज बॉडी टेम्परेचर? अगर हम अपना थर्मामीटर लेके अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करें तो एवरेज ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. ओके, बट अगर आपने मेजर किया अपने बॉडी का टेम्परेचर और वो 37 डिग्री नहीं हुआ तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक. हमें उसको लेके नहीं सोचना है कि एग्जैक्टली 37 आएगा. इट्स नॉट, सबके बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है. किसी का 37 से थोड़ा कम हो सकता है, किसी का 37 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. अब ये 37 जो है ये एवरेज टेम्परेचर, कुछ हेल्दी लोगों के टेम्परेचर, हेल्दी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से एक एवरेज निकाला गया है जिसे हम 37 डिग्री सेल्सियस आया, तो इसे ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर हम बोलेंगे दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब क्लिनिकल थर्मामीटर की एक खासियत है, इसमें एक शार्प कर्व होता है बल्ब के ऊपर जिसे किंक कहते हैं. अब किंक का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो फॉल डाउन ऑफ द मर्क्यूरी लेवल. एक बार आपने अपने मुंह में थर्मामीटर रखा, आपका टेम्परेचर 1 मिनट तक मुंह में रखा, उसको निकाला, आप अपने बॉडी टेम्परेचर देख रहे हैं मर्क्यूरी लेवल राइज होने के बाद, तो वो मर्क्यूरी लेवल जो है इट विल नॉट फॉल ईजली, वो अपने आप नीचे नहीं जाएगा एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस किंक. सो हम क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहली चीज़, जब भी आप एक क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करें, यू नीड टू वॉश दैट थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. ओके, बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर द थर्मामीटर इज़ गिवन फ्यू जर्क. अब हम टेम्परेचर लेने से पहले हमेशा थर्मामीटर को थोड़े से जर्क देते हैं, हम उसे थोड़ा झटकते हैं. वाई डू वी डू दैट? क्योंकि उसका जब हम अपना टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तब मर्क्यूरी लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, इसलिए उसको नीचे, अगर वो नहीं है तो उसको नीचे लाने के लिए हम उसको झटकते हैं. नाउ हमने अभी पढ़ा कि किंक जो है जिसके वजह से मर्क्यूरी लेवल अपने आप नीचे नहीं आता है. सो दिस इज़ द रीज़न, किंक के वजह से वो अपने आप मर्क्यूरी लेवल नीचे नहीं आता है, तो हमें उसे कुछ झटके देने पड़ते हैं, हम उसे जर्क्स देने पड़ते हैं. ओके, फिर नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी प्लेस दिस थर्मामीटर बीनीथ आवर टंग एंड इट इज़ प्लेस्ड बीनीथ आवर टंग फॉर अबाउट अ मिनट. ओके, 1 मिनट तक रखते हैं. नाउ आफ्टर 1 मिनट यू कैन टेक आउट द थर्मामीटर एंड यू कैन ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन द थर्मामीटर. ओके, मर्क्यूरी लेवल राइज होता है जब आप उसको अपने मुंह में रखते हैं और उसके बाद आप उसको निकाल के आराम से अपना बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं. Now there are some precautions we need to take while using this thermometer. फर्स्टली हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि हमेशा हमें अपने थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है, राइट. सो ये दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट precaution we should take. We should always wash the thermometer before and also after using it. Okay, second important point is हमेशा हम अपना टेम्परेचर नोट डाउन करने से पहले हमें देखना है कि थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे है. The temperature of the thermometer is below 35 degree Celsius. Okay. Next is keep the thermometer straight in order to see the mercury level. अगर आपको mercury level देखना है तो थर्मामीटर को आपको straight रखना है, प्लस उसको आपको हमेशा अपने आई लेवल पे रखना है. एंड इट इज़ ईज़िली ब्रेकेबल, सो उसको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है एंड उसे बहुत अच्छे से रखना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, you should never touch the bulb of the thermometer. Okay, so these are some of the precautionary measures. We have seen what clinical thermometer is, how it is used, and what are the measures, important precautionary measures we should always keep in our mind before using such kind of thermometer. Now let us have a look at the video. This is how a clinical thermometer looks. Now it is made up of a glass tube
This end filled with mercury is known as bulb. Okay, now here you can see the reading given here and a fine capillary tube. और mercury level जो है इसी ट्यूब में एक थ्रेड लाइट की तरह ये है, इसमें राइज होता है जिससे हमें टेम्परेचर पता चलता है. एंड देयर इज़ अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या है, किंक है, जिसके वजह से क्या होता है, मर्करी जो है अपने आप नीचे फॉल नहीं होती है. जब हम अपना टेम्परेचर देख लेते हैं उसके बाद मर्करी लेवल अपने आप नीचे नहीं आता है. रेंज क्या है थर्मोमीटर की, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट में अगर हम इसे देखेंगे तो ये है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. रीडिंग स्केल यू कैन सी इट हियर इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर. तो जो भी हमारा टेम्परेचर होगा इस रीडिंग स्केल में हमारा मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी राइज होकर जहाँ स्टॉप होगा वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा. नाउ हाउ इट इज़ यूज, इट इज़ प्लेस्ड इन अ माउथ बीनीथ अ टंग फॉर अ मिनट एंड when it is placed in the mouth what happens, the mercury heats up and it expands. So यहाँ पर आप देख रहे हैं मर्क्यूरी कैसे ऊपर राइज हो रही है. ये कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी राइज हो रही है. नाउ आफ्टर 1 minute what is there, it is taken out of a mouth. और ये जो है टेम्परेचर, ये जो यहाँ पर मर्क्यूरी लेवल रुक गया है, दैट इज़ आवर बॉडी टेम्परेचर. The reading does not change on removing the thermometer from the mouth. हमने उसको मुंह से निकाल दिया लेकिन उसकी रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, मर्क्यूरी लेवल फॉल नहीं हो रहा है. क्यों, किंक के वजह से, इस स्मॉल रिस्ट्रिक्शन के वजह से मर्क्यूरी जो है अपने आप नीचे फॉल नहीं हो रही है. So this is how we measure our body temperature using a clinical thermometer. अभी इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले हमें इसे रीसेट करना होगा और रीसेट करने के लिए हम इसे कुछ जर्क्स देते हैं ताकि मर्क्यूरी लेवल जो है 35 डिग्री के नीचे आ जाए. ओके, सो दिस इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर. नाउ द नेक्स्ट इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. लेबोरेटरी थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को छोड़ के बाकी सब्सटेंसेस का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं. Other than body temperature, laboratory thermometer is used to measure temperature of different substances. Mostly it is used in the laboratories. The laboratory thermometer is used to find out the temperature of objects such as water. जैसे हमें गर्म पानी का टेम्परेचर पता करना है, बॉडी के टेम्परेचर को छोड़ के हम किसी और चीज़ का टेम्परेचर पता कर रहे हैं तो हम लेबॉरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे. मोस्ट कॉमनली इट इज़ यूज्ड इन लेबॉरेटरीज, तो इसका नाम लेबॉरेटरी थर्मोमीटर हो गया है. ओके, नाउ इसमें रीडिंग स्केल देखते हैं. इट कैन मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी थी, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस. बट यहाँ पर जो है लेबॉरेटरी थर्मोमीटर है, इसकी रेंज हमें मिल रही है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. ये भी दिस इज़ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लेबॉरेटरी थर्मोमीटर. It is in length it is more than the clinical thermometer. Now how this laboratory thermometer is used to measure the temperature, let us have a look at the video. We'll take water in a beaker and we need to take the laboratory thermometer and dip it in the water. Now students, इसको आपको इस तरह से dip करना है that it should, the bulb of this thermometer should not touch the bottom of the vessel, plus it should not be in a slant position में भी नहीं होना चाहिए उसको. And once it is placed inside the beaker, temperature rise हो जाएगा, but when you take it out the temperature starts to fall. सो अगर आपको टेम्परेचर देखना है, बॉइलिंग जो भी बीकर में वाटर है उसका टेम्परेचर देखना है तो आपको थर्मोमीटर को लेना है, होल्ड करना है उसको इन सच अ वे कि वो बॉटम पे तो टच नहीं होना चाहिए लेकिन वो पानी में डिप होना चाहिए और वो बॉटम्स और साइड्स में कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए. और आपके आई लेवल पे आपको देखना है कि मर्क्यूरी लेवल कहाँ तक राइज़ हुआ है. वो आपका जहाँ पर मर्क्यूरी लेवल स्टडी हो जाए वही उस वाटर का टेम्परेचर है और आपको टेम्परेचर जब वो उस
पानी में इमर्स्ड है ना, तभी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि वंस यू विल टेक इट आउट द मर्क्यूरी विल स्टार्ट टू फॉल, तो टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा। आप जैसे ही उसे पानी में से निकालेंगे वैसे ही मर्क्यूरी लेवल नीचे आ जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा था, ये जब पानी में था तो ये 25 डिग्री दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही बाहर निकाला मर्क्यूरी लेवल नीचे आ गया और वो 23 डिग्री दिखा रहा है अभी। ओके, सो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें किंक नहीं है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक है, तो हम उसे मुंह से निकाल के आराम से टेम्परेचर देख सकते हैं, मर्क्यूरी लेवल फॉल नहीं होता है। लेकिन लेबॉरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है, तो जिसके वजह से हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर देखना है तो जब वो उस सब्सटेंस में इमर्स्ड है तभी हमें देखना है। उसको बाहर निकालेंगे तो मर्क्यूरी लेवल सडनली उसका फॉल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबॉरेटरी थर्मोमीटर। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रिकॉशंस वी शुड take when using laboratory thermometer. First, you should always follow the same precautions as that of the clinical thermometer. वॉश करना, ये सब जो पहले हमने प्रिकॉशंस पढ़े उनको माइंड में रखिए, सेम वैसा करना है। यू शुड ऑलवेज होल्ड द लेबॉरेटरी थर्मोमीटर इन स्ट्रेट अपराइट पोजीशन विदाउट टिल्टिंग इट। आपको हमेशा थर्मोमीटर को स्ट्रेट पोजीशन में होल्ड करना है, उसको बिल्कुल भी स्लैंट नहीं होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए, ना उसे कंटेनर के वॉल को टच करना चाहिए, ना उसको बॉटम को टच करना चाहिए। बल्ब शुड नेवर टच द बॉटम ऑफ द कंटेनर। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज kept. Okay, however, the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all sides. So आपको हमेशा इस तरह से उसको डिप करना है कि जो बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी फिल रहती है वो पूरी तरह से पानी में इमर्स होना चाहिए और उसको सरफेस पे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। एंड केयरफुली हैंडल करना है थर्मोमीटर्स को हमेशा, they are easily breakable. So this is what precautions we need to take while measuring the temperature of any substance using laboratory thermometer. Now there are other types of thermometer. These are minimum maximum thermometer. What is the use of minimum maximum thermometer? Students, here you can see the picture of minimum maximum thermometer. Now these type of thermometer are used to measure the minimum and maximum temperature of the day by weather forecasters. हम लोग डेली न्यूज़ में देखते हैं कि today's minimum temperature is 30 डिग्री सेल्सियस and maximum is 42 डिग्री सेल्सियस। सो वो टेम्परेचर जो है मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर को यूज़ करके ही मेजर किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है? इट इज़ एक्चुअली एन एडवांस वर्जन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को रिप्लेस करके आजकल हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल थर्मोमीटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होती है एंड मर्क्यूरी बहुत ही टॉक्सिक होता है और उसको हम ईज़िली डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी नहीं होती है। इट इज़ वेरी मच सेफ फॉर अस टू यूज़ एंड प्लस इसमें डायरेक्टली आपको रीडिंग्स आपके बॉडी का टेम्परेचर डिजिटल फॉर्म में दिख जाता है, तो इट इज़ वेरी मच ईजी टू यूज़ दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज उसमें मर्क्यूरी होती है। ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी प्रेजेंट इन क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एंड डिफ़िकल्टी इन इट्स डिस्पोजल इन केसेस व्हेन द थर्मोमीटर ब्रेक्स, digital thermometer are manufactured that can measure the accurate temperature without the use of mercury. So simply we can say digital thermometer ने clinical thermometer को replace कर दिया है and the reason is it is very convenient to use it. It is very much safe because it does not contain mercury and mercury जो थर्मोमीटर्स में है क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है। मर्क्यूरी टॉक्सिक होती है, ईज़िली डिस्पोजेबल नहीं होती है। सो सेफ़र साइड के लिए हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि कौन सब्सटेंसेस हॉट और कोल्ड क्यों होते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट इन दैट सब्सटेंस।
अभी two substances when comes in contact with each other, what happens? The flow of heat energy takes place and heat energy हमेशा hot to cold object की तरफ flow होती है. अगर कोई substance heat को gain कर रहा है तो उसका temperature वो कैसा होगा? वो hot होगा, उसका temperature ज़्यादा होगा. और अगर कोई substance heat को lose कर रहा है तो वो cold होगा. ओके, हमने हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देखा. हमने देखा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के यूनिट्स क्या है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन. वी हैव सीन दैट वी कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू नो द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच dangerous for us to touch everything and know whether it is hot or cold. सो एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए. उस डिवाइस को हम कहते हैं थर्मोमीटर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर: क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर एंड मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आज हमने वो पढ़ा. एंड वी हैव सीन द minimum maximum thermometer which is used to measure the minimum and maximum temperature of the day, and also the digital thermometer which has replaced the clinical thermometer. Okay, that's all for today's. Thank you. Thanks for watching.